حسین ہے ابو بکر عمر غنی کے دل نشیں، حسین سے صحابہ کی محبتوں پہ شک نہیں۔ حسین ہے ابو بکر عمر غنی کے دل نشیں، حسین سے صحابہ کی محبتوں پہ شک نہیں۔ حسین سے صحابہ کی محبتوں پہ شک نہیں۔ حسین تیرا ذکر خیر تو ثواب عین ہے، حسین تیرا ذکر خیر تو ثواب عین ہے۔ حسین سا کوئی کہاں، حسین سا کوئی کہاں، حسین تو حسین ہے، حسین سا کوئی کہاں، حسین تو حسین ہے، حسین تو حسین ہے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین۔ کیوں نہ کرے معاویہ کا تذکرہ ہے جو صحابی بنا رسول کا، جان فدا کرتے ہیں حسنین پر، جن کو ملا پیار ہے بطول کا۔ شان میں طلحہ اتم مجھ کو خدا کی ہے قسم، مرتبوں والا زبیر ہے۔ نام یہ خالد کا سنو، ایسے مجاہد کا سنو جس نے کیا باطلوں کو زیر ہے۔ ہمارا جوش ہے جوان، ہمارے عشق کا نشان ہے ہمارے سینوں میں بھرا ہوا صحابہ 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 صحابہ۔ جہاں سے آپ گزرے ہیں وہ رستہ جگمگاتا ہے، عمر کے نام سے سارا زمانہ ڈگمگاتا ہے۔ عمر کی شان ہے بت سے تو شیطابل ملاتا ہے، تیری للکار سے دشمن لرزتا لڑکھڑاتا ہے، تیری للکار سے دشمن لرزتا لڑکھڑاتا ہے۔ جہاں سے کفر کی ظلمت کو جس نے یوں مٹایا ہے، آج سارے کرو اقرار، حسین وفادار حسین سردار، حسین وفادار حسین سردار۔ نعرہ گج کے حسین دائے لامنا، نعرہ گج کے حسین دائے لامنا، سن عاشقاں نے ٹھر ٹھر جامنا تے تینو دل گیر منے ہے۔ میں تو سید حسین نو ہی پیر منے ہے، میں تو سید حسین نو ہی پیر منے ہے۔ لالے لشکر حق دا امیر منے ہے، لالے لشکر حق دا امیر منے ہے۔ آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء، آپ سے اہل حق کو ملی آگہی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ کوئی اور بھیج، یہ بے غیرتی ہے۔ یا اللہ ابابیل بھیج، کیوں ابابیل بھیج؟ یہ جو 1.5 ارب مسلمان دنیا میں ہیں یہ کیا ہے؟ یا اللہ ابابیل بھیج، محمد بن قاسم، اگر 1.5 ارب لوگوں کے اندر کوئی محمد بن قاسم نہیں بن رہا تو یا اللہ کوئی ہلاکو خان بھیج، یہ 1.5 ارب ختم کرے۔ 1.5 ارب میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، یہ ہنسنے کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے کہ 1.5 ارب بھی یہ کہ یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج۔ میرا عمر میری جان عمر ہے، میری پہچان عمر
میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر خدا کا پیارا نبی کا پیارا عمر علی کا بھی ہے دلارا خدا کا پیارا نبی کا پیارا عمر علی کا بھی ہے دلارا عمر کی تعریف کیا سناؤں عمر کی تعریف کیا سناؤں عمر کی تعریف کیا سناؤں عمر ہے اسلام کا ستارہ ہے دعائے مصطفیٰ کا اثر میرا عمر دین کا جرنیل بے خوف و خطر میرا عمر کتنی بڑی ہے شان عمر شان میں ہے شایان عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر دلہا بن کے جس کے گھر آئے میرے مصطفیٰ وہ عمر فاروق اعظم ہے داماد مرتضیٰ دلہا بن کے جس کے گھر آئے میرے مصطفیٰ وہ عمر فاروق اعظم ہے داماد مرتضیٰ ہے کتنا ذیشان عمر ہے کتنا ذیشان عمر جانے من جانان عمر ہے عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر نبی نے مانگا خدا نے بھیجا عمر وہ خطاب کا ہے بیٹا نبی نے مانگا خدا نے بھیجا عمر وہ خطاب کا ہے بیٹا اسی کے آنے سے دین کو طاقت ملی عمر دین کا ہے ہیرا فیصلہ سرکار کا جس نے بھی مانا نہ تھا فیصلہ سرکار کا جس نے بھی مانا نہ تھا فیصلہ تلوار کا اس کے لیے تھا عمر کا حق سچ کا اعلان عمر حق سچ کا اعلان عمر سچائی کا بیان عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر کے سائے سے شیطان بھاگا نہ سامنے وہ عمر کے آیا عمر کا ہے نام انقلابی کہ جس نے کفار کو ہلایا ہے محرم کی یکم شرف شہادت پا گیا ہے محرم کی یکم شرف شہادت پا گیا 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا نعمت کا سلطان عمر نعمت کا سلطان عمر ہے وقار کی جان عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے
और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते, और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसासे कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। फारूक हुसैन के घर गुस्ताख पिलानत है, फारूक हुसैन के घर गुस्ताख पिलानत है, पर उनका जो नौकर है वो शख्स सच्चा है। एक दिल की धड़कन है, एक दिल का दुलारा। आप कुरान लाए
آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ سے اہل حق کو ملی آگہی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی چاہا جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. خدا کا پیارا نبی کا پیارا عمر علی کا بھی ہے دلارا. خدا کا پیارا نبی کا پیارا عمر علی کا بھی ہے دلارا. عمر کی تعریف کیا سناؤں عمر کی تعریف کیا سناؤں عمر کی تعریف کیا سناؤں. عمر ہے اسلام کا ستارہ ہے دعائے مصطفیٰ کا اثر میرا عمر. دین کا جرنیل بے خوف و خطر میرا عمر. کتنی بڑی ہے شان عمر شان میں ہے شایان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. دلہا بن کے جس کے گھر آئے میرے مصطفیٰ وہ عمر فاروق اعظم ہے داماد مرتضیٰ. دلہا بن کے جس کے گھر آئے میرے مصطفیٰ وہ عمر فاروق اعظم ہے داماد مرتضیٰ. ہے کتنا ذیشان عمر ہے کتنا ذیشان عمر جانے من جانان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. نبی نے مانگا خدا نے بھیجا عمر وہ خطاب کا ہے بیٹا. نبی نے مانگا خدا نے بھیجا عمر وہ خطاب کا ہے بیٹا. اسی کے آنے سے دین کو طاقت ملی عمر دین کا ہے ہیرا. فیصلہ سرکار کا جس نے بھی مانا نہ تھا. فیصلہ سرکار کا جس نے بھی مانا نہ تھا. فیصلہ تلوار کا اس کے لیے تھا عمر کا. حق سچ کا اعلان عمر حق سچ کا اعلان عمر سچائی کا بیان عمر. میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. عمر کے سائے سے شیطان بھاگا نہ سامنے وہ عمر کے آیا. عمر کا ہے نام انقلابی کہ جس نے کفار کو ہلایا. ہے محرم کی یکم شرف شہادت پا گیا. ہے محرم کی یکم شرف شہادت پا گیا. 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا. 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا. نعمت کا سلطان عمر نعمت کا سلطان عمر ہے وقار کی جان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر. میرا عمر میری جان عمر ہے میری پہچان عمر.
अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतश जहन्नम का वादा किया है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे। वही उनको काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और माल और औलाद में कहीं ज्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से फायदा उठा चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं, उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया। और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे, उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए और अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते, और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने
सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। फारूक हुसैन के घर गुस्ताख पे लानत है, फारूक हुसैन के घर गुस्ताख पे लानत है, पर उनका जो नौकर है वो शख्स सच्चा है। एक दिल की धड़कन है, एक दिल का दुलारा। बाजू की तबीयत होगी भले खराब, बाजू की तबीयत होगी भले खराब, अरशद बुलंद नसीब सितारा उमर उमर, अरशद बुलंद नसीब सितारा उमर उमर, अल्लाह का खुसूसी इशारा उमर उमर, उमर की सोच का तारा उमर उमर, उमर की सोच का तारा। हुसैन वो जवान है जो कारिये कुरान है, कारिये कुरान है, कारिये कुरान है, सहाबिये रसूल है, नबी का खानदान है, नबी का खानदान है, नबी का खानदान है, सहाबिये रसूल है, नबी का खानदान है, सिद्दीक उमर का लाडला जमाने भर को याद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते, और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मजाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया।
آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیا کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا، جن کے بارے میں مستشرقین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ موتی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ کا دشمن کا جب زمانہ، مگر کا قدموں میں ایک دیوانہ، کون تھا کوئی مجھے بتائے، فام اول وہ نام کیا ہے، کھائے صدمے تھے جس نے سر پر ہے نام اس کا، صدیق اکبر، قسم 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 خدا کی قسم قسم قسم۔ عمر کے وفادار ہے، عثمان کے حبدار ہے، علی کے سچے یار ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔
आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। वो पहला खलीफा हमें दिल जान से प्यारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा। वो हक को सदाकत का शुजाअत का है धारा, इस्लाम के दुश्मन को हर महाज पे मारा। रोजी कदर बशर मेरे नबी का दुलारा, इस्लाम का बेबाक वफादार सिपाही, हर जालिम व जाबिर की मिटा किसने दी शाही, तौहीद के हर दाम पे दी जिसने गवाही, हर मोड़ पे बनकर वो मोहम्मद का सहारा। मुहर्रम की यकम शर्फे शहादत पा गया, 22 मुरब्बा मील पर इस्लाम को फैला गया, 22 मुरब्बा मील पर इस्लाम को फैला गया, नेमत का सुल्तान। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते, और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मजाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है,
कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है। माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। हुसैन वो जवान है जो कारिये कुरान है, कारिये कुरान है, कारिये कुरान है। सहाबिये रसूल है, नबी का खानदान है, नबी का खानदान है, नबी का खानदान है। सहाबिये रसूल है, नबी का खानदान है। सिद्दीक उमर का लाडला जमाने भर को याद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मजाहिब की कोई न कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी। चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है,
कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है। माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। ओ इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है। का दुश्मन था जब जमाना, मगर का कदमों में एक दीवाना। कौन था कोई मुझे बताए, में अव्वल वो नाम क्या है। खाए सदमे थे जिसने सर पर है नाम उसका, सिद्दीक़ अकबर। कसम 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 खुदा की कसम कसम कसम। उमर के वफादार है, उस्मान के हुबदार है, अली के सच्चे यार मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह गर्दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी, शेख शाब ने कहा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। वो पहला खलीफा हमें दिल जान से प्यारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, वो हक को सदाकत का शुजाअत का है धारा, इस्लाम के दुश्मन को हर महाज पे मारा, रोजी कदर बशर मेरे नबी का दुलारा, इस्लाम का बेबाक वफादार सिपाही, हर जालिम व जाबिर की मिटा जिसने दिशाही, तौहीद के हर दाम पे दी जिसने गवाही, हर मोड़ पे बनकर वो मोहम्मद का सहारा। मुहर्रम की यकम
شرف شہادت پا گیا 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا نعمت کا سلطان عمر نعمت کا سلطان عمر ہے وقار کی جان عمر محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے انمول ہیرے موتی تلال انمول ہیرے موتی تلال سارے صحابہ سونے دی آلن ستے اجی بھی روزے وچ سائیں دے نال ستے اج بھی روزے وچ سائیں دے نال کلمے دے منکر کلمے دے منکر منا چین آوے جیڑا صحابانو ود گھٹ علاوے جیڑا صحابانو ود گھٹ علاوے قسم خدا دی او جمدا نہ جاوے جیڑا صحابہ پہ فدا ہو جا عظیمت کی صدا ہو جا وفا کی ابتدا ہو جا وفا کی انتہا ہو جا یہی دل کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا مولا یہی دل کی تمنا ہے مجھے اپنا بنا مولا مزہ آ جائے جینے میں اطاعت ہو تو ایسی ہو مزہ آ جائے جینے میں اطاعت ہو تو ایسی ہو بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو عبادت ہو تو ایسی ہو جہاں ملتی ہے مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی جہاں ملتی ہے مجرم کو پناہیں بھی جزائیں بھی خدا کے ہاں لگی ہے جو عدالت ہو تو ایسی ہو خدا کے ہاں لگی ہے جو عدالت ہو تو ایسی ہو بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو سکون قلب ہو جس میں عبادت ہو تو ایسی ہو عبادت ہو تو ایسی ہو صحابت عشق دیا دو اکھاں نے عاشق نہ دیوی کروڑا لکھاں نے آل صحابت عشق دیا دو اکھاں نے عاشق نہ دیوی کروڑا لکھاں نے وچ قرآن دے ذکر انہاں دے پیاراں دا سونے دے غمخوار نبی دے یاراں دا میرے نبی کے صحابہ
دے غم خار نبی دے یاراں دا میرے نبی کے صحابہ نوکر آل صحاب تے 50-12 دا سونے دے غم خار نبی دے یاراں دا سونے دے غم خار نبی دے یاراں دا توحید و رسالت کے مت والو کیے ہمدم توحید و رسالت کے مت والو کیے ہمدم دستار صحابہ ہیں تو تیر صحابہ ہیں انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے عہد رواں کے اے غیور دل مومن عہد رواں کے اے غیور دل مومن عالم کو بتا چھوڑیں میرے پیر صحابہ ہیں انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے اسلامی حفاظت کی شمشیر صحابہ ہے انوار نبوت کی تصویر صحابہ ہے کوئی صدیق فاروق غنی کرارے پائے ہیں القاب کتنے پیارے کوئی صدیق فاروق غنی کرارے پائے ہیں القاب کتنے پیارے کوئی خدا کی تلوار روشن تارے ہیں سارے مل کے لگائے نعرے مل کے لگائے نعرے یار نبی کے پیارے روشن تارے ہیں سارے مل کے لگائے نعرے مل کے لگائے نعرے عشق صحابہ گئے پیار صحابہ گئے اپنے تو دل کا قرار صحابہ ہے عشق صحابہ گئے پیار صحابہ گئے اپنے تو دل کا قرار صحابہ ہے ان کے بنا میں گزارے روشن تارے ہیں سارے مل کے لگائے نعرے مل کے لگائے نعرے یار نبی کے پیارے روشن تارے ہیں سارے مل کے لگائے نعرے مل کے لگائے نعرے آبا قوسین پر جب وہ جانے لگے رک کے سدرا پہ جبریل کہنے لگے آبا قوسین پر جب وہ جانے لگے رک کے سدرا پہ جبریل کہنے لگے اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا میری پرواز کا اختتام آ گیا نور سے دل میرا جگمگانے لگا میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا نور سے دل میرا جگمگانے لگا میری روح کو بھی لطف دوام آ گیا ایک صحابی نبی کا بڑا محترم شان والا ہے وہ ہے
बड़ा मुहतशम, एक सहाबी नबी का बड़ा मोहतरम, शान वाला है वो है बड़ा मुहतशम, पढ़ के पीछे नमाजें अली ने कहा, बाद आका के मेरा इमाम आ गया। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फ़े दवाम आ गया। नूर से दिल मेरा जगमगाने लगा, मेरी रूह को भी लुत्फ़े दवाम आ गया। दिलकश वो मंज़र जो रब ने दिखाया, न तकलीफ पहुंची कि जब जख्म खाया। था दिलकश वो मंज़र जो रब ने दिखाया, न तकलीफ पहुंची कि जब जख्म खाया। गुनाहों की सतरे मिट्टी मेरे दिल से, लहू का ये कतरा गिरा कर जो देखा। न जीने की ख्वाहिश रही दिल में बाकी, शहादत की बात में आकर जो देखा। मेरा रिज़्क़ सौगात फिरदौस तेरा, सजा जब मेरे सर शहादत का सेहरा। मेरा रिज़्क़ सौगात फिरदौस तेरा, सजा जब मेरे सर शहादत का सेहरा। सलामी फरिश्तों ने दिया नूरे, गले मौत को हाँ लगा कर जो देखा। बड़ा लुत्फ़ आया यहाँ दिल लगी का, खुदा वाली राह मेरा कर जो देखा। न जीने की ख्वाहिश रही दिल में बाकी, शहादत की बात मेरा कर जो देखा। है आज तलक कुफर को जिस नाम से डर है आज तलक कुफर को जिस नाम से डर है। हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है, हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है, हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है। उसको है मिली सारे जहां में बड़ी इज्जत, दरियाओं तलक उसने ही कर डाली हुकूमत, दरियाओं तलक उसने ही कर डाली हुकूमत। आका की इनायत से जो बेबाक निडर है। हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है, हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है। आज तलक कुफर को जिस नाम से डर है। हो मौला उमर उमर मौला उमर है, हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है। बातिल में कहाँ इतनी मजालाक दिखाए, भागे हैं ये मैदान से सदा मुंह को छुपाए। है आज तलक कुफर को जिस नाम से डर है आज तलक कुफर को जिस नाम से डर है। हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है, हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है, हो मौला उमर मौला उमर मौला उमर है। उसको है मिली सारे जहां में बड़ी इज्जत, दरियाओं तलक उसने ही कर डाली हुकूमत। तूने पूछा हबीबे खुदा है कहाँ, यानी मौजूद अब मुस्तफा है कहाँ। मैंने फौरन उमर का
زلزلہ زلزل امن اسرائیل بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل اٹھو اقصا کے بیٹوں اور زمین کو خوب تھرا دو مٹا دو امن اسرائیل اور شعلوں کو بھڑکا دو اٹھو اقصا کے بیٹوں اور زمین کو خوب تھرا دو مٹا دو امن اسرائیل اور شعلوں کو بھڑکا دو جو دھوکہ دے رہے ہیں امن کا تم ان کو دھوکہ دو اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل یہ بزدل خوف کے مارے ہیں اور ڈرتے ہیں لڑنے سے نہیں ان میں کوئی مردانگی ڈرتے ہیں مرنے سے یہ بزدل خوف کے مارے ہیں اور ڈرتے ہیں لڑنے سے نہیں ان میں کوئی مردانگی ڈرتے ہیں مرنے سے یہ سب اسباب ہیں مکڑی کے جالے ان کو بکھرا دو اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل دلوں میں ان کے ہر سو خوف ہے اور موت کا ڈر ہے یہ عشرت مال و دولت چھن نہ جائے بس یہی ڈر ہے دلوں میں ان کے ہر سو خوف ہے اور موت کا ڈر ہے یہ عشرت مال و دولت چھن نہ جائے بس یہی ڈر ہے یہ اب جو جنگ پھیلی ہے اسے تم اور پھیلا دو اٹھو آندھی کی صورت اور مٹا دو امن اسرائیل تہتم زلزل زلزلہ وزلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ بڑھو بن جاؤ زلزلہ زلزلوں کا زلزلہ
زلزل زلزل زلزلہ زلزل زلزلہ زلزل امن اسرائیل. یہ منقبت ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پر. شاعر کہتا ہے ہو گئی جس کو پہچان عثمان کی، وہ زباں ہے ثنا خان عثمان کی. قدر کر اے مسلمان عثمان کی، چھوڑ راہ فتن مان عثمان کی. ہیں حرم میں شہ دی کی دو بیٹیاں، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں. ہیں حرم میں شہ دی کی دو بیٹیاں، مرحبا عظمت و آن عثمان کی. عشق تھا ان کو قرآن سے اس لیے، عشق تھا ان کو قرآن سے اس لیے، مدح کرتا ہے قرآن عثمان کی. ان پہ حور و ملائک بھی عاشق ہوئے، ان پہ حور و ملائک بھی عاشق ہوئے. خلد ہے مرتبہ دان عثمان کی. ہادیو مہدیو صاحب رشد ہیں، ہادیو مہدیو صاحب رشد ہیں. پر جواہر سے ہے کان عثمان کی. اللہ اکبر. پر جواہر سے ہے کان عثمان کی. اس کو ملتی ہے خوشنودی مصطفیٰ، اس کو ملتی ہے خوشنودی مصطفیٰ. بات مانے جو انسان عثمان کی. تذکرہ یہ رفیق نبوت کا ہے، منقبت کب ہے آسان عثمان کی. قدسیوں کا ہو شہزاد مجمع لگا، قدسیوں کا ہو شہزاد مجمع لگا. مدح فرمائیں حسان عثمان کی. مٹی تیری ہم سب کی محبت کا فلک ہے، تجھ میں شہ کونین کے قدموں کی مہک ہے. آقا نے بڑھائی تیری ہے عزت و تمکین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین. شجاعت کے قلم سے تیرا آئین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین. شہبازی و جرت کا سبق ہے تیری تلقین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین. یاد آتا ہے نبیوں کی جماعت کا وہ منظر، کیا خوب تھا آقا کی امامت کا وہ منظر. معراج کی شب آئے جو اقصیٰ میں شہیدین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین. شجاعت کے قلم سے تیرا آئین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین. ہمارے سر سے سایہ اٹھ چکا ہے، عجب سی ایک قیامت آ بپا ہے. تڑپتے جا رہے ہیں پھول چہرے، نہیں ملتے ہمیں پانی کے قطرے. تو پھر رمضان ہم کیسے گزارے، کہاں ہم جائیں اور کس کو پکارے. مجھے دشمن سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے غزہ کے بچوں کو بچانا ہے. رنگ بازو کی طبیعت ہوگی بھلے خراب، رنگ بازو کی طبیعت ہوگی بھلے خراب. ارشد بلند نصیب ستارہ عمر عمر، ارشد بلند نصیب ستارہ عمر عمر. اللہ کا خصوصی اشارہ عمر عمر، عمر کی سوچ کا تارا عمر عمر، عمر کی سوچ کا تارا.
कुरान है, क़ारिए कुरान है, क़ारिए कुरान है। सहाबिए रसूल है, नबी का खानदान है, नबी का खानदान है, नबी का खानदान है। सहाबिए रसूल है, नबी का खानदान है। सिद्दीक़ उमर का लाडला जमाने भर को याद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निजाम कायम किया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफिलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते, और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएं बच्चों को आजाद पैदा करती हैं, हमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मजाहिब की कोई न कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उमर को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सानहे की इत्तला किसने दी। चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जिंदा थे मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िया की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, माँ सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलिमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी कि अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराकर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए उनकी तारीख में एक उमर फारूक भी था, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ करते हैं कि इस्लाम में अगर एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दीन होता। वो दीन
نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ کا دشمن تھا جب زمانہ، مگر کا قدموں میں ایک دیوانہ، کون تھا کوئی مجھے بتائے، فام اول وہ نام کیا ہے، کھائے صدمے تھے جس نے سر پر ہے نام اس کا صدیق اکبر، قسم 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 خدا کی قسم قسم قسم۔ عمر کے وفادار ہے، عثمان کے حبدار ہے، علی کے سچے یار ہے، معاویہ 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 محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، آخری نبی آخری نبی آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ وہ پہلا خلیفہ ہمیں دل جان سے پیارا، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا، وہ حق و صداقت کا شجاعت کا ہے دھارا، اسلام کے دشمن کو ہر محاذ پہ مارا، روزی قدر بشر میرے نبی کا دلارا، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اسلام کا بے باک وفادار سپاہی، ہر ظالم و جابر کی مٹا کس نے دی شاہی، توحید کے ہر دام پہ دی جس نے گواہی، ہر موڑ پہ بن کر وہ محمد کا سہارا، محرم کی یکم شرف شہادت پا گیا، 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا، 22 مربع میل پر اسلام کو پھیلا گیا، نعمت کا سلطان کا دشمن تھا جب زمانہ، مگر کا قدموں میں ایک دیوانہ، کون تھا کوئی مجھے بتائے، فام اول وہ نام کیا ہے، کھائے صدمے تھے جس نے سر پر ہے نام اس کا صدیق اکبر، قسم 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 خدا کی قسم قسم قسم۔ عمر کے وفادار ہے،
उस्मान के हुबदार हैं, अली के सच्चे यार हैं। मुआविया, 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 मुआविया। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह गर्दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी, शेख शाब ने कहा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। वो पहला खलीफा हमें दिल जान से प्यारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, वो हक को सदाकत का शुजाअत का है धारा, इस्लाम के दुश्मन को हर महाज पे मारा, रोजी कदर बशर मेरे नबी का दुलारा, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, इस्लाम का बेबाक वफादार सिपाही, हर जालिम व जाबिर की मिटा किसने दिशाही, तौहीद के हर दाम पे दी जिसने गवाही, हर मोड़ पे बनकर वो मोहम्मद का सहारा, मुहर्रम की यकम शर्फे शहादत पा गया, 22 मुरब्बा मील पर इस्लाम को फैला गया, 22 मुरब्बा मील पर इस्लाम को फैला गया, नेमत का सुल्तान उमर, नेमत का सुल्तान उमर, है वकार की जान उमर, है मेरी जान उमर, है मेरी पहचान उमर। सारे नबियों से अफजल हमारा नबी यकीनन है, लेकिन उस अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर क्या जिम्मेदारी डाली थी? बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरा कोई एक भी उम्मती न रह जाए जो कुरान की तबलीग न करे, चाहे एक ही आयत आती है, एक ही आयत की तबलीग करे। ये हदीस है कि नहीं रसूल? कोई मेरा उम्मती फारिग न रहे इससे। ये काम है जो बहैसियत उम्मती हमारे कंधे पर है। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह गर्दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है
यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी, शेख शाब ने कहा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा-ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। वो पहला खलीफा हमें दिल जान से प्यारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, सिद्दीक हमारा, वो हक को सदाकत का शुजाअत का है धारा, इस्लाम के दुश्मन को हर महाज पे मारा, रोजी कदर बशर मेरे नबी का दुलारा, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, इस्लाम का बेबाक वफादार सिपाही, हर जालिम व जाबिर की मिटा किसने दिशाही, तौहीद के हर दाम पे दी जिसने गवाही, हर मोड़ पे बनकर वो मोहम्मद का सहारा, चाहा जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नीयते भी, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, चाहा जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नीयते भी, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, चाहा जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नीयते भी, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, चाहा जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है, जो इख्तियारे बशर पे पहरे बिठा रहा है वही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. إنك حميد مجيد بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. إنك حميد مجيد بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد